Hello friends, today in this lecture we are going to discuss the expression for the force experienced by the moving charge in the magnetic field. Okay? Then we are going to discuss the motion of the charged particle in the magnetic field. Okay? Okay. The first concept is the force on the positive charge moving in the magnetic field. Now, since let us suppose that there exists a magnetic field in any region, and let us suppose that we are projecting the positive charge in that magnetic field. Now, if we are projecting that positive charge in the magnetic field, now since this moving charge, the moving charge is the analog of, say, the current, and since in the previous lectures I had already told you that every current carrying conductor is associated with some magnetic field. So since whenever the charge is projected in the magnetic field, due to the motion of the charge, the magnetic field is produced around the charge, and the existing magnetic field, it interacts. That is, the existing magnetic field exerts some force on this produced magnetic field. Got it, sis? So we can say that the existing magnetic field, it exerts some force on this moving charge. Now, since we are going to discuss those parameters on which the magnitude of the force experienced by the positive charge depends. Clear? Now, let us suppose that vector B is the magnetic field. Vector B is the magnetic field which is directed along positive y-axis. Got it? And further, let us suppose that we are talking about the positive charge, say, plus q. We are talking about the positive charge, say, plus q, which is projected with the velocity, say, vector v, at an angle theta with the direction of the magnetic field. At an angle theta with the direction of the magnetic field. Now, since there exists the magnetic field along the positive y-axis, and we are talking about the positive charge, and this positive charge is being projected with some velocity at some acute angle with the direction of the magnetic field. Now, since I had already told you that the moving charge is equivalent to the current which is flowing in a conductor, and every current carrying conductor has some magnetic field around that. Now, since the existing magnetic field, it will exert some force on the produced magnetic field, or we can say that the existing magnetic field, it interacts with the positive charge which is in motion. Got it? Now, we are going to talk about the force experienced by this positive charge. Clear? Now, first of all, you have to copy this figure. Okay? And then you have to note down the considerations. First of all, copy this figure. Yes, sir. Now, friends, note down the considerations. Suppose the magnetic field vector B is along the positive y direction, and the charge plus q is projected with the velocity vector v at an acute angle, say, theta, with the direction of the magnetic field. Full stop. The charge plus q experiences the force vector F. Full stop.
in the next line. The force experienced by the positive charge depends on, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए सर बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, फर्स्ट थिंग, let us suppose say that F be the magnitude of the force experienced by the charge plus Q. This F is directly proportional to B, the magnitude of the magnetic field. Greater the existing value of the magnetic field, greater would be the force. Greater would be the force which is experienced by the charge plus Q. Now the second thing, this force F is directly proportional to the magnitude of the charge being projected. Greater the magnitude of the charge, greater would be the current. And greater would be the produced magnetic field. So since the two magnetic fields, they are going to interact more strongly. Okay. Now since we are taking the rectangular component or the velocity vector in a direction perpendicular to the magnetic field. Okay. The component v sin theta, the component v sin theta is the component of the velocity, say vector v, in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field. Now since the magnitude of this force is also found to be directly proportional to v sin theta. Got it? Now these are the three parameters on which the force which is experienced by the positive charge depends. Now combining all these three parameters, this F is written as F is directly proportional to Q B v sin theta. Q B v sin theta. चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q v sin theta multiplied with. Okay, sirs. Now to remove the proportionality sign, you have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is say K. Got it? Say it is say Q, say v sin theta multiplied with. Now, sirs, in the serious system of units, this K, the value of K is 1. The value of K is 1. So, sirs, the magnitude of the force experienced, by the charge say plus Q is given by say Q v sin theta multiplied with B. It will be the magnitude of the force experienced by the charge. Let us call this as the equation number first. Now since the question exists that this force is a vector quantity, as the force is a vector quantity it should have some direction. The direction of force is defined by, we can rewrite this equation. I am rewriting this equation. This vector F is written as say Q multiplied with vector V cross vector B. Got it, sirs? Let us call this as the equation number second. So since the direction of vector force is defined by the direction of the cross product of vector V cross vector B. Got it, sirs? Copy it. Yes, sir, it's done. Now, since we will talk about the direction of the force experienced by this positive charge. As since from the equation second, we conclude that the direction of vector F is defined by the direction of vector V cross vector B. Now, vector V and vector B, both of them, they are in the plane of the whiteboard. So vector V cross vector B, the direction of vector V cross vector B, it should be perpendicular to the plane of the whiteboard, either in the outward direction or in the inward direction. That is either towards the observer or away from the observer. You are reading, so you are the observer. Clear हो गई बात? तो बेटा पॉजिटिव y एक्सेस दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव x एक्सेस दिखाई दे रहा है. तो बेटा ये हो गया xy प्लेन. तो xy प्लेन का जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया z डायरेक्शन. क्लियर? तो बेटा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f को डिफाइन करते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना, बड़े ध्यान से देखिए. सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड की. ओके, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले आप पंच बनाएंगे, पहली फिंगर को रिलीज करेंगे और याद रखें थंब को सेकंड फिंगर के नकल पे लगा के रखेंगे. क्लियर? अब बेटा अपने हाथ को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके आएंगे, मतलब रिस्ट को ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करेंगे
और फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग पॉइंट आउट करेगी। गॉट इट? समझ आ गई बात? सेकंड फिंगर ध्यान से देखिए, रिलीज करी, लेकिन हमने थंब से पकड़ा हुआ है नहीं, तो ये जो सेकंड फिंगर है ये वी साइन थीटा के लॉन्ग होगा। गॉट इट? अब इसके बाद आप थंब को छोड़ दें, इसके बाद आप थंब को छोड़ दें। क्लियर? इस तरीके से कि बेटा थंब, फर्स्ट फिंगर और ये मिडल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रही है, सेकंड फिंगर वी साइन थीटा का डायरेक्शन डिफाइन कर रही है, तो थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर डिफाइन करेगा। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके ओके ओके। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफाइन किया हमने बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर, it gives you the direction of magnetic field. It is along the direction of the magnetic field. The first finger is along the direction of the magnetic field. The second finger, it is along V sin theta. V sin theta. And the thumb of the left hand, it will give you the direction of force, say vector F. Got it? अब ध्यान से देखिए, दोबारा से देख लें बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करें। रिस्ट पॉइंट O पे पंच बनाया, फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच किया, फर्स्ट फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब ध्यान से देखिए, सेकंड फिंगर के नकल पे लगा के रखा हुआ है, सेकंड फिंगर को रिलीज किया, सेकंड फिंगर इज अलोंग वी साइन थीटा, उसके बाद आपने थंब को रिलीज किया। तो बेटा जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। क्लियर? तो थंब आपको दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यू आर द रीडर, और यू कैन से दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द रीडर। तो टुवर्ड्स द रीडर हो गया पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, टुवर्ड्स द रीडर हो गया पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो सिंस ये जो फोर्स वेक्टर F है, इट इज अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? सो वी कैन से दैट द फोर्स वेक्टर F इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी कर ले बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिफाइन किया है फोर्स का डायरेक्शन, यूज करना सिखा दिया। हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आपने ऐसे यूज करना है। गॉट इट? क्लियर? याद रखें, ये किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? जल्दी से कॉपी करें। Yes, sir. Now, let us suppose say instead of positive charge, we are projecting a negative charge. बेटा चार्ज अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तब क्या होता? तब स्टूडेंट्स चार्ज अगर नेगेटिव होता तो स्टूडेंट्स फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता। मतलब इस वाले केस में अगर फोर्स हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, चार्ज अगर नेगेटिव होता तो आप कैसे करते? आप ऐसे करते, आप अपने लेफ्ट हैंड में एक पेन पकड़ेंगे, क्लियर, इस तरफ। क्लियर? अब ध्यान से देखिए दोबारा। रिस्ट कॉन्साइड किया, फर्स्ट फिंगर को रिलीज किया मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, सेकंड फिंगर वी साइन थीटा के लॉन्ग, थंब को रिलीज किया, तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब के ऑपोजिट आएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब के ऑपोजिट आएगा नेगेटिव चार्ज के केस में। क्लियर? तो सिर्फ अगर चार्ज नेगेटिव होता है, ये पहले कॉपी कर लिया आपने, बाय नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज बेटा नेगेटिव होता तब क्या होता? फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होता, सेकंड फिंगर अलोंग वी साइन थीटा होता, थंब
जो फोर्स होता फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर along v sin theta, and force is opposite to thumb. क्लियर? बस बेटा ये याद रखना है कि फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. क्लियर? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर and thumb of left hand are mutually perpendicular. Got it? बेटा ये सिंपल सा काम है, क्लियर हो गया? कॉपी कर ले इसको भी. ओके, अब बात करेंगे केसेस की. जल्दी से कॉपी कर लें. तो स्टूडेंट्स, आपने टारगेट किसको करना है? आपने टारगेट हमेशा करना है जब भी कभी रीजनिंग क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल्स आए तो बेटा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या तो वेलोसिटी हो या फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट हो. बात समझ आ गई? तो टारगेट किसको करना है? Say vector B is along y-axis. The charge, let us suppose it is positive. This is the velocity vector, and this angle is say theta. The component is v sin theta, which is along the positive x-axis. Okay, in that case, the direction of force, it will be perpendicular to this v sin theta as well as perpendicular to this magnetic field. So the direction of force, it was along positive z direction. Got it? Now since we are talking about the cases, if suppose the case first, if suppose this theta 1 equals to say 0 degrees. अगर बेटा ये theta 0 होता तो मतलब पॉजिटिव चार्ज को आप प्रोजेक्ट करते in the direction of the magnetic field. Clear? In this case, what will happen? The sin 0, it will be 0. So the force vector, it will be equals to 0. तो बेटा फोर्स कैसा हो जाएगा? 0. समझ आ गई ये बात? पहला केस क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ओके. Now the case again. If suppose this theta were 180 degrees. Theta were 180 degrees. मतलब बेटा ये चार्ज प्लस क्यू, इस चार्ज प्लस क्यू को आप मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते तो थीटा कितना हो जाता? 180. अगेन sin 180 degrees is also equals to 0. So the force F is also equals to 0. तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कोई भी चार्ज हो, जब बेटा कोई भी चार्ज आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. सिंपल सी बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स. क्लियर? जल्दी से कॉपी करें. Yes, sir. Now, sirs, the third case and the most important case. Third case and the most important case. Case third. Here, suppose that theta equals to 90 degrees. Theta equals to 90 degrees, that is, let us suppose say that it is say the direction of the magnetic field. It is say vector v. तो ध्यान से देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज को कैसे प्रोजेक्ट किया? पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी से वेक्टर v, ओके, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. That is, the charge is projected along the positive x-axis.
and the magnetic field is supposed to be along the positive y-axis. Now in this case what will happen? We are going to use the Fleming's left hand rule. We are talking about the positive charge. The charge is say positive. Now take a look. Left hand, बेटा लेफ्ट हैंड का रेस्ट O पॉइंट के साथ कोइंसाइड किया, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग और थंब साथ में सेकंड फिंगर के नकल पे लगा दिया, सेकंड फिंगर वेलोसिटी के लॉन्ग, थंब को रिलीज कर दिया, तो फोर्स आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड टुवर्ड्स द रीडर, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। समझ आ गई ये बात? तो बेटा इस वाले केस में जो फोर्स का डायरेक्शन आ गया वो आ गया अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। सिंपल, इतना काम क्लियर? ओके, नाउ इन दिस केस सबको पता है बेटा sin 90 1 होता है and the magnitude of the force it will be maximum and it will be equals to say QVD. sin 90 1 होता है, व्हाट है ये? सिंपल सी बात, समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बेटा, यूजुअली न्यूमेरिकल्स में या रीजनिंग क्वेश्चंस में हमेशा इस केस की बात होती है, आपको चार्ज पार्टिकल का पाथ डिस्क्राइब करना होता है। समझ आ गई बात? ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? लेट अस सपोज से बेटा ये एक रीजन है और इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रेजेंस है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो कन्वेंशनली स्टूडेंट्स बेटा जो क्रॉसेस है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज सिंपली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड इन द इनवर्ट डायरेक्शन। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड मार्कर के अलॉन्ग है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मार्कर के टिप के अलॉन्ग है, दैट इज perpendicular to the plane of white board and in the inward direction, that is away from the reader। समझ आ गई ये बात? अब सपोज करते हैं, let us suppose we are having the charge say plus q and the charge plus q is projected with the velocity say vector v in the region of the magnetic field। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो नीचे वाली बाउंड्री है, इस नीचे वाली बाउंड्री के नीचे की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट नहीं कर रहा, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट कर रहा है वो ऊपर की तरफ एक्सिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब जैसा कि आपको बताया था बेटा, जो फोर्स का डायरेक्शन है ये आपको टेक्निक बता रहा हूं मैं कैसे यूज करना है। जो फोर्स का डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, it is perpendicular to the velocity vector। in general अगर एक लाइन में बोलना है, सारी बात एक लाइन में बोलनी है, तो बेटा फोर्स वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर होगा। क्लियर? ओके, अब बेटा ये सारी की सारी जो सिचुएशन है बड़ी सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए। आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड बस पेपर के परपेंडिकुलर हो, आप जिस शीट पे लिख रहे हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और वेलोसिटी वेक्टर प्लेन ऑफ पेपर में दिखाई दे, तो सीधा बोलना कि जो फोर्स वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखें फिगर, ये देखिए वेलोसिटी वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है बेटा? जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया मार्कर के लॉन्ग हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड मार्कर के लॉन्ग हो गया, वेलोसिटी वेक्टर प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड में हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो स्टूडेंट्स अब ये चार्ज फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? बेटा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गया। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? अब बेटा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि फोर्स राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, तो उसके लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिफाइन करेंगे। बात समझ आ गई? पंच बनाएंगे, फर्स्ट फिंगर को पहले रिलीज करेंगे, फर्स्ट फिंगर को जब आप रिलीज करें फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग पॉइंट आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था दोस्तों, बेटा ध्यान से देख ले, थंब को सेकंड फिंगर के नकल पे लगा के रखा हुआ है, गॉट इट? तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, सेकंड फिंगर को रिलीज किया। अब बेटा हाथ को घुमाना है, हाथ को घुमाना है। हाथ कैसे घूमेगा? आपका हाथ ऐसे घूमेगा। समझ आ गई बात? मतलब ऐसे नहीं घूम सकता, यहां पे नहीं घुमाना है,
ठीक है, हाथ कैसे घूमेगा, इस पहली फिंगर को पकड़ लेना, सेकंड फिंगर को रिलीज करके रखना, पहली फिंगर को पकड़ लेना, हाथ को ऐसे घुमाना। समझ आ गई बात? क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हो गया, सेकंड फिंगर हमने रिलीज कर दिया। अब बेटा हाथ इस तरीके से घुमाए कि ये सेकंड फिंगर वेलोसिटी वेक्टर के लॉन्ग आए, तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो सेकंड फिंगर ऊपर की तरफ आ गया। अब थंब को छोड़ें। अब जब आप थंब को रिलीज करते हैं तो स्वेल्स, थंब किधर दिखाई दे रहा है आपको? थंब दिखाई दे रहा है इस साइड पे, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो स्वेल्स, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो बेटा जो फोर्स वेक्टर होगा वो कहीं इस तरफ होगा। बात समझ आई? अब बेटा फोर्स अगर इस तरफ होगा तो इसका पाथ ध्यान से देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जाता अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता। अब क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उसने फोर्स लगा दिया, तो अब क्या चार्ज अपने पाथ से डेविएट होगा। डेविएशन किस तरफ प्रोड्यूस होगा? डेविएशन लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट विल हैपन? एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट विल हैपन? दिस चार्ज इट विल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ। क्लियर? The charge particle will describe the circular path or the circular section in the magnetic field. तो बेटा जब तक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तब तक डेविएशन होता रहेगा। क्लियर? और फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो जब आपको पाथ स्केच करना पड़ जाए तो कैसे करें? बेटा जिस पॉइंट पर चार्ज एंटर करे वहां पे फोर्स वेक्टर मार्क करें, चार्ज का डेविएशन प्रेडिक्ट कर ले, किस साइड पे हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है। हल्का सा डेविएशन प्रोड्यूस करने के बाद में, अब ध्यान से देखें, लेट अस सपोज से जब चार्ज इस पॉइंट को क्रॉस करता तो जो वेलोसिटी वेक्टर होता वो इधर होता, फोर्स किधर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देख लें, तो यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर होता वो इधर होता। कॉल दिस एज v डैश वेक्टर। समझ आ गई ये बात? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखें, पंच, पहली फिंगर को रिलीज किया, थंब को देखें नकल पे लगा के रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, सेकंड फिंगर को रिलीज किया, घुमाए हाथ को, वेलोसिटी के लॉन्ग लेके आए, थंब को छोड़े, तो फोर्स आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? अब बेटा इस वाले वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करें और पहले वाले वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करें, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन होगा। बात समझ आ गई? वो पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन होगा। अब बेटा सेंटर हो गया तो ये रेडियस हो गया। अब एक आर्क कंसीडर कर लें यहां, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसके बाद फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर देगा, तो चार्ज पार्टिकल टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? इसको v डबल डैश वेक्टर से डिनोट कर लें, कॉपी कर लें इसको। तो ये पाथ यहां तक पहले कॉपी कर लिया, तो ये पाथ ऑफ positive charge moving in the magnetic field. सिंपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो स्वेंस आपको सिखा दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आपको फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन करना है, फिर उसके बाद सब कुछ से। ठीक है, कॉपी कर ले। यस सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका ध्यान रखना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का कंपोनेंट आपने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी है उसको कंसीडर करना है। समझ आ गई बात? क्लियर? अब सेकंड टॉपिक करते हैं। अब की बार स्टूडेंट्स चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट सम एक्यूट एंगल, और एक्चुअल में चार्ज का पाथ कैसा डिस्क्राइब हुआ पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, motion of positive charge in
the magnetic field. Motion is a positive charge in the magnetic field. देखिए बेटा, let us suppose say it is the direction of the magnetic field. Let us suppose say the magnetic field it exists along the positive y-axis, and let us suppose say that it is the positive x-axis. Clear? बेटा, चार्ज को आपने वेलोसिटी v दिया, the charge is plus q, the charge is projected at an acute angle with the direction of the magnetic field. Clear? Now, since we can take the rectangular components of this velocity vector, the components, they are v sine theta is in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field, and v cos theta is in the direction of the magnetic field. v cos theta is in the direction of the magnetic field. समझ आ गई ये बात? थीटा अगर एक्यूट है तो v cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा. थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता, अगर ऐसे चार्ज को प्रोजेक्ट किया होता तो थीटा ऑब्ट्यूज होता. थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता तो v sin थीटा तो यहीं पे आता. v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो अभी हमने जो केस कंसीडर किया, हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया एट सम एक्यूट एंगल इन द मैग्नेटिक फील्ड. समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए बेटा, कंपोनेंट v sin थीटा को देखिए, कंपोनेंट v cos थीटा दिखाई दे रहा है. बेटा, चार्ज पार्टिकल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया दैट इज ड्यू टू द कंपोनेंट v sin थीटा. क्लियर? ओके. और जो फोर्स का डायरेक्शन आया था दैट वाज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द v sin थीटा, परपेंडिकुलर टू v sin थीटा. क्लियर? तो v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से फोर्स v sin थीटा के परपेंडिकुलर है, तो v sin थीटा स्पीड होगा जिससे चार्ज पार्टिकल घूमेगा. समझ आ गई? समझ आ गई बात? अब बेटा, जो फोर्स है वो v sin थीटा की वजह से है, v cos थीटा की वजह से नहीं है. क्लियर? तो सिंस v sin थीटा की वजह से सिर्फ घूमेगा. अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल की स्पीड y एक्सिस के अलोंग भी है विच इज v cos थीटा. तो सिंस v cos थीटा की वजह से क्या होगा? v cos थीटा की वजह से चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा. तो दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, v cos थीटा, v sin थीटा. v sin थीटा की वजह से घूमेगा और v cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, बेटा, जब चार्ज को आप प्रोजेक्ट करेंगे with some velocity at some acute angle with the direction of the magnetic field, तो क्या होता है? तो सिंस कुछ ऐसा होता है. से दिस इज द ओरिजिन, v sin थीटा यहां पर था. अब कैरी वेक्टर v को मार्क नहीं कर रहे, v cos थीटा यहां पर है और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस. क्लियर? तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल स्विच, चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ डिस्क्राइब करेगा, घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव भी करेगा. बात समझ आ गई? तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ डिस्क्राइब करेगा? ऐसा पाथ डिस्क्राइब करेगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ. समझ आ गई बात? क्लियर? ओके, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ड्यू टू v sin थीटा, चार्ज पार्टिकल describes circular path. Got it? And due to v cos theta, the charge particle tends to move in the direction
along or opposite to वेक्टर बी। बता दिया था बेटा अलॉन्ग कब होगा, अलॉन्ग तब होगा जब एंगल एक्यूट होगा, ऑपोजिट कब होगा जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा। बात समझ आ गई। वी साइन थीटा की वजह से, वी कॉस थीटा की वजह से, वी साइन थीटा की वजह से घूमेगा और वी कॉस थीटा की वजह से इट टेंड्स टू मूव आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट विल डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा एक्यूट है तो चार्ज पार्टिकल विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो चार्ज पार्टिकल विल टेंड टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? कॉपी करें। यस यस, कॉपी कर लिया। अब बेटा ये जितना भी हमने काम किया इसको हम वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, कॉपी कर लें, लिख लें। सपोज द चार्ज प्लस क्यू, सपोज द चार्ज प्लस क्यू is projected at some acute angle with the direction of the magnetic field full stop, taking the rectangular components of the velocity vector vector v, taking the rectangular components of velocity vector v, नेक्स्ट लाइन में लिखें, ड्यू टू वी साइन थीटा द चार्ज पार्टिकल experiences the magnetic force and tends to describe the circular path, and tends to describe the circular path, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखें, ड्यू टू v cos theta the charge particle tends to move along the magnetic field, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखें, as a result of which the charge particle describes the helical path in the magnetic field। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? इससे पहले जो किया था, जब हमने चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, तो वी कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ गया था, इसलिए सिर्फ सर्कुलर सेक्शन डिस्क्राइब हुआ था। बात समझ आ रही? इतना काम क्लियर है? क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट m स्मॉल m बी द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज प्लस q projected with the velocity vector v in the magnetic field vector b at some acute angle theta। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें डिराइव करना है। जैसे बेटा रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन या हेलिकल पाथ कितना होता है, क्लियर? टाइम पीरियड कितना होगा, पिच ऑफ द हेलिक्स कितना होगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहली चीज v sin theta is along the positive x-axis and v cos theta is along the positive y-axis, that is in the direction of magnetic field। तो सिर्फ इस वाले केस में वेलोसिटी वेक्टर ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव x-axis, पॉजिटिव y-axis,
The charge plus q was projected with the velocity से vector v at some acute angle से थी। तो इसके बाद ये वाला फिगर, वेलोसिटी वेक्टर मैंने हटा लिया जिससे कि सिर्फ पाथ को मार्क करना है, ठीक है। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ याद रखें, चार्ज पार्टिकल घुमा किसकी वजह से था, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया था v sin थीटा की वजह से। लिखें चार्ज पार्टिकल tends to describe the circular path due to the component v sin theta। बात समझ आ गई? कॉपी करें यहां तक, जल्दी से कॉपी करिए। डन? डन? नाउ अब ध्यान से देखें, this F was the magnitude of the magnetic force experienced by the charge, and this was say q v sin theta multiplied with b. Clear? This force, the magnetic force, it provides the necessary centripetal force. ये एक important statement है, लिख लें आप इसको। The magnetic force experienced, note कर लें, the magnetic force experienced by the positive charge provides the required centripetal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा जब पार्टिकल घूम रहा है तो सर्कुलर सेक्शंस डिस्क्राइब करने के लिए पार्टिकल को फोर्स चाहिए था और वो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इट इज mv sin थीटा स्क्वायर। mv स्क्वायर होता है स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड है v sin थीटा जिसकी वजह से घूम रहा है, डिवाइडेड बाय से स्मॉल r। क्लियर? This implies that this mv sin theta square mv sin theta square divided by r, it is equals to qv sin theta multiplied with b। Got it? तो बेटा v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, we are left with r। So since this r is written as mv sin theta divided by qb। तो since radius mv sin theta divided by qb, बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? कॉपी कर लें, कॉपी करिए। Done? Now the second thing which we are going to calculate, बेटा याद रखें मैंने मेंशन कर दिया था this m was the mass of the charged particle, ठीक है। Second thing which we are going to calculate, time period। Time period, next line में लिखें, let capital T be the time period, let capital T be the time period of revolution of the positive charge in the magnetic field। So since distance equals to speed into time, so 2 pi r will be the radius, so the distance covered in one circular turn it will be 2 pi r, it will be equals to speed, that is v sin theta multiplied with the time period। बात समझ आ गई? So since this time period t is written as say 2 pi r
divided by it is v sin theta. Okay, now we are going to place the value of r over there. So this time period t is written as say 2 pi, r का वैल्यू लगाए, it is mv sin theta divided by q into say b multiplied with 1 upon v sin theta. Got it? कॉपी करें. Now since the v sin theta is cancelled out, v sin theta को कैंसिल किया तो t is written as say 2 pi multiplied with n divided by say qb. T is written as 2 pi multiplied with m divided by qb. It is the required expression for the time period. Got it? बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें. Now since the third thing, frequency of revolution. Frequency of revolution. Frequency of revolution. Okay, next line में लिखें let nu be the frequency of revolution. So the frequency nu is the reciprocal of the time period. Frequency is the reciprocal of the time period. The frequency nu is written as 1 upon say 2 pi multiplied with qb divided by m. So since the time period and the frequency both, they are independent of the speed of the charge particle. हैश डाल के लिखें इसको, हैश डाल के लिखें, मैं लिख देता हूं, कॉपी कर लें. Both frequency and time period are independent of the speed of the charged particle. With which it is projected in the magnetic field. कॉपी करें. Done. Now the last thing, is the pitch of the helical path. Pitch of helical path. पेज ऑफ द हेलिकल पाथ. बेटा देखिए, ये हेलिकल पाथ है, तो बेटा दो कॉन्सेक्यूटिव टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं. स्प्रिंग इमेजिन कर लें, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्न्स, स्प्रिंग्स को कंप्रेस करिए, फिजिकली टर्न्स आपको कांटेक्ट में दिखाई देंगे, स्प्रिंग को रिलीज कर दें, तो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्न्स के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं. तो pitch is the distance between the two consecutive
circular terms. Got it? Let small d be the pitch, small d be the pitch of the helical path. So small d is written as speed v cos theta, क्योंकि बेटा अब की बारी चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज v cos थीटा और उसका डायरेक्शन ये है. बात समझ आ रही? v cos theta multiplied with capital T. This capital T is the time period of revolution. So the small d is written as say 2 pi multiplied with m multiplied with v multiplied with cos theta divided by qb. तो सर जब पिच कैलकुलेट करना है तो v sin थीटा यूज नहीं होगा, वो वाला स्पीड यूज करना है जिससे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है. गॉट इट? कॉपी करें. Yes, sir. So, students, it is all for today. In the next lecture, students, I will discuss the force experienced by the current carrying conductor in the magnetic field. Then we are going to discuss the interaction between the current carrying conductors. Got it? Okay.